Namaskar, my dear young friends of class 11. In this video, I am going to discuss Python list manipulation. This video is helpful for students who has opted computer science and informatics practices in class 11. So here we begin. Before starting, I will introduce myself. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AICS IP. So let we go. First of all, what are the contents we will discuss in this video? So we will discuss list manipulation for class 11. First is accessing and traversing list by index. There are three types of indexes: positive indexing, negative indexing, and using loop. So these three ways we will cover in this video. Then slicing list, how to slice your list with different methods. Membership operators are there like in and not in. Then concatenation, replication, comparing list, and making true copy of a list. So let we start. Before starting this video, if you are watching my channel first time, coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel. I am uploading regular content on my channel, so you will get the latest and updated content according to your syllabus, as well as I am explaining each and every topic in easy manner so you can understand it easily. Moreover, if you have any doubt or query, you can comment on my videos, so I will explain that particularly with your comment reply. So here we start. List manipulation. Now you learn how to create list. तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं. अगर आपने वो पोस्ट मिस कर दिया है या वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा. नाउ इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू यूज एंड मैनिपुलेट दिस लिस्ट एंड इट्स एलिमेंट्स. बेसिकली लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज वैल्यूज कैन बी चेंज इन प्लेस. मीन्स इन लिस्ट यू कैन चेंज द वैल्यू एट their particular indexes places. That indexes can be considered as a place. Suppose that I will explain you how it will store. Suppose in one list we have three numbers 25, 32 and 27. Now suppose this is your first element, so that will be stored at index 0. So the index of list will start from 0 only. So the first index value will be 0, second value will be 1, and third value will be 2. So like this it will continue. So here these are the places, and these places are known as indexes in a list. Now next topic is, at first sight lists are similar to string. So the list manipulation is also similar to string manipulation. So it is something which is similar to strings. In strings also or text also we are accessing each and every character one by one and starting with 0. So similarly you can access the list also. So the string manipulation also I have given the link. You can open this and you can read the details. Now the following are ways to access list. How you can access list? First, by index you can access. Second, you can do slicing. Third is membership operator. You can use membership operator. Fourth, concatenation. You can use concatenation, replication, comparing list and making true copy of list. So index वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप उसकी पोजीशन के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं. उसमें और भी डिटेल हम देखेंगे आगे. स्लाइसिंग वो भी हम पूरा डिटेल कवर करेंगे. स्लाइसिंग का मतलब होता है कि जैसे उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक यूज करना, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन से लेकर के स्पेसिफिक पोजीशन तक एक्सेस करना, तो उसे हम स्लाइसिंग कहेंगे. उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो इन और नॉट इन, जैसे हम स्ट्रिंग में देखे थे वही है कि आपको अगर लिस्ट में 5 नंबर है उसमें से देखना है कि वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो हम इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करेंगे. कॉन्काटिनेशन, जैसे अगर आपको जोड़ना है लिस्ट को, लिस्ट 1 के एलिमेंट के साथ लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है और तीसरा लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को मर्ज करके. दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन. देन रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन है कि लिस्ट के वैल्यूज को रिपीट करना, डुप्लीकेट कंटेंट जनरेट करना सेम लिस्ट का, तो आप यहाँ वहां पे रेप्लिकेशन उसको बोल सकते हैं. और कंपेयरिंग लिस्ट,
दो लिस्ट की वैल्यूज को कंपेयर करना। कंपेयरिंग में ये होता है कि वो वैल्यू बाय वैल्यू चेक करेगा, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है तो आपको दिखाएगा, नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आएगा, और है तो ट्रू आएगा। तो ये बुलियन वैल्यू वहां पे रिटर्न करेगा। और मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ये बहुत ही सिंपल टास्क है लिस्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, उसके बाद है नेगेटिव इंडेक्सिंग, और उसके बाद है यूजिंग लूप। तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो इंडेक्स है उसको प्रॉपरली यूज करना। पॉजिटिव इंडेक्स के साथ 0 1 2 3 लाइक दैट, तो वहां से स्टार्ट होता है 0 से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा माइनस से। तो यहाँ पे देखिए, द पॉजिटिव इंडेक्सिंग अलाउज टू एक्सेस द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखा है, L इक्वल टू 11 22 33 44 55। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है L ऑफ 0, और यहाँ पे ये सिंबल प्रिंट कर दिया है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा के, जैसे एरो जैसा दिखे, L ऑफ 0। तो यहाँ पे L ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है, ये वाली हो गई L ऑफ 1, ये हो गया L ऑफ 2, ये हो गया L ऑफ 3, और ये हो गया L ऑफ 4। तो यहाँ पे L ऑफ 0 1 2 3 4। तो आपको हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है इंडेक्सिंग से। तो ये एक तरीका है, आप किसी भी नंबर को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी लूप के। अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको पाइथन में देख लेते हैं अपन। यहाँ पे पाइथन ओपन कर देता हूं मैं आइडियली, और ये जब तक ओपन होता है तब तक नेगेटिव इंडेक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग रिफर्स टू एक्सेस और ट्रावर्स द लिस्ट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर इन मीन्स, इट मीन्स व्हेन द नेगेटिव इंडेक्स इज यूज्ड इट विल डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट फर्स्ट। तो मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो लास्ट इंडेक्स जो है वो फर्स्ट प्रिंट करेगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट में जाएगी, मतलब रिवर्स प्रोसेस। व्हेन इट इज स्टार्टिंग विथ 1, हियर इट विल स्टार्ट विथ -1। तो 0 के बाद क्या होगा, -1 होगा। तो -1 में कौन सा वैल्यू होगा हमारा, तो इसी प्रकार से आएगा 55 44 33 22 11। तो इसी प्रकार से एक्सेस करेगा। पाइथन यहाँ ओपन हो चुका है, तो हम इसी में एक बार कोड को पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, इसे सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, और यहाँ पे डी ड्राइव में पाइथन, चलिए एक फोल्डर बना लेता हूँ, लिस्ट मैनिपुलेशन, इसमें Pro 1। ओके, अब इसे रन करता है। आप देखिए आउटपुट बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिमेंट हमने रखे थे सेम वैसे आया है। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रिवर्स में चाहिए तो रिवर्स के लिए हम यहाँ से कोड सीधा मैं कॉपी कर लेता हूँ जो -1 से स्टार्ट किया है। तो जब भी आपको ऐसा आउटपुट चाहिए इसी तरह का, तो आप -1 से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे -1 से भी आपको प्रिंट करके दे देगा। इसे सेव कर लेते हैं Pro 2 में, फाइल सेव एज Pro 2। ओके, रन करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे L0 मतलब -1 ये है, -2 इंडेक्स ये है, -3 ये है, -4 ये है, और -5 ये है। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग का आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपको लिस्ट में से पीछे से किसी वैल्यू को एक्सेस करना है रिवर्स फॉर्म में, तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। थर्ड है लूप। तो लूप तो एकदम सिंपल है, आप लूप ऐसे लिख दीजिए, फॉर आई इन रेंज 0 to 5। यहाँ पे मैंने रेंज इसलिए लिया है कि मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, L ऑफ 0 L ऑफ 1 ऐसे वैल्यू आए, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज किया। अदरवाइज लिस्ट को एक्सेस करने के लिए रेंज फंक्शन की जरूरत नहीं होती है। देखिए इसमें करते हैं Pro 3 सेव। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, ये और ये। और मैंने आई क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये वाली सारी वैल्यू यहाँ एक्सेस करनी थी, इसलिए यहाँ रेंज फंक्शन यूज करके हमने उसको लिखा है। मानो कि यहाँ पे मुझे 1 से चाहिए इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं i+1 कर दूंगा, i+1। तो
तो जैसे ही i+1 करते हैं वो वहां पे L 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएगा। तो आप इसी प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिस्ट को, अपने आउटपुट फॉर्म को। पर ये जो मेन चीज है जहां लिस्ट से एक्सेस होगी वैल्यूज, वो हम एक्सेस करेंगे ये वाली L of I। तो L of I में जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आगे मैंने वही एक्सप्लेन किया है, देखिए आई हैव यूज रेंज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ I इन आउटपुट। यू कैन अवॉइड रेंज फंक्शन एज वेल इन द फॉलोइंग मैनर। अगर आपको रेंज फंक्शन यूज नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करना है या तो प्रिंट कर देना है, तो ये सिंपल आप यूज कर सकते हैं बिना रेंज के। यहां पे सिर्फ आप लिख दीजिए L, तो I इन L और यहां पे L of I ऐसे प्रिंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो एक वैल्यू है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो प्रिंट ऑफ I यहाँ पे सीधा आ जाएगा। देखिए अगर मैं ये करूंगा तो इसमें ऐसे आएगा, देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि लेंथ, इसका जो लेंथ है वहां तक तो गया, बट ये क्या है L, तो इसीलिए एक वैल्यू आगे चला जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल ऐसे करेंगे, या तो फिर रेंज फंक्शन यूज करिए, तो I में जो वैल्यू होगी ऐसे आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये लूप इसी तरह से एक्सेस कर सकता है आप, और लिस्ट के वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग लिस्ट, तो स्लाइसिंग लिस्ट के दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्ट स्टार्ट और स्टॉप यूज कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है L स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। इसका मतलब होता है पहले स्टार्ट वैल्यू लेंगे, उसके बाद स्टॉप वैल्यू लेंगे, और लास्ट में जो नंबर आएगा वो होगा स्टेप। मतलब कि हर बार इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, कितने स्टेप्स के बाद वैल्यू प्रिंट होगी या कितने स्टेप्स के बाद वैल्यू आपको एक्सेस करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सिंपल फंक्शन है आपका। तो इसी तरह से स्लाइसिंग यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला स्लाइस, ये देख लीजिए L इक्वल टू नंबर तो वही है अपने पास, स्लाइस L 0 to 4, तो यहाँ पे 0 to 4 एक्सेस कर दिया, मतलब कि पूरा लिस्ट वैसा का वैसा हमने एक्सेस किया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे प्रोग्राम में Ctrl V F5, देखिए तो इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई। तो 0 to 4 मतलब उसने 4 तक के जो उसको एक्सेस कर लिया। अगर यहाँ पे आपको सभी वैल्यू चाहिए तो हम सीधा ये लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है नहीं, तो पूरा लिस्ट ये प्रिंट कर देगा। तो स्लाइसिंग में ये भी एक इसका बेनिफिट है कि आप स्टार्टिंग या एंडिंग पोजीशन अवॉइड करेंगे तो भी वो वैल्यू प्रिंट करेगा। और अब आपको मानो कि पहले 3 चाहिए, तो इसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए 3, तो वो 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ऐसे काउंट करता है। उसके बाद अगर आपने कॉलन डाल के ये कर दिया है कि मुझे 3 चाहिए पर 2 के अंतराल में चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो होगा वो प्रिंट करेगा। देखिए 3 और 2 स्टेप करके उसने यहाँ पे 1133 प्रिंट किया। तो ये है स्लाइसिंग। तो इसी प्रकार से आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। फिर उसमें नेगेटिव इंडेक्स भी वैसे ही डाल सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स का ये प्रोग्राम है, छोटा सा कोड, इसे मैं सीधा रन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं कोड को। ये देखिए अब मैंने क्या किया यहाँ पे 3344, तो यहाँ पे सिंपली 2 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2, तो जो भी 2 सेकंड इंडेक्स होगा वहां से स्टार्ट होगा, और -1 मतलब नेगेटिव वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिल रहा है 33 और 44। तो 2 से स्टार्ट किया हमने, तो 2 कहाँ पे है, ये है 0 1 2, और जाएगा कहाँ तक -1 तक, तो -1 हमारा ये है। तो एंड वैल्यू तक ये गया और उसने यहाँ पे हमें ये आउटपुट दिया। तो इसी प्रकार से नेगेटिव इंडेक्स भी आप स्लाइसिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्म यहाँ पे ये दिया है 233। इसका मतलब कि जो नंबर आपके स्लाइस में इंडेक्स नंबर नहीं है वहां तक गए हम, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो मैक्सिमम लिस्ट में जितने भी नंबर है वहां तक ही प्रिंट करेगा, स्टार्टिंग से लेकर के वहां तक। 33 का मतलब ये नहीं होता कि वो 33 नंबर है तो कुछ भी प्रिंट कर दे, जितनी वैल्यूज है उतना प्रिंट करेगा। ये यहाँ पे लिखा है, देखिए लिस्ट स्लाइसिंग इज स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 1 दैट इज 33 टू इंडेक्स 33। ओके, तो ये 1 है, स्टार्टिंग विथ 1 दैट इज 33, तो ये वैल्यू 33 की बात की है और ये इंडेक्स 33 की बात की है। तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो गए हैं मेरे, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पोस्ट में। यहाँ पे देखिए कि 33 ये क्या है, इसी वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया 0
1 2, तो उसके लिए मैंने ये 33 लिखा है इंडेक्स 1, और दूसरा जो है सेकंड 2 इंडेक्स 33, तो यहाँ पे इंडेक्स 33 तक जाएगा। तो जो इंडेक्स होगा तो यहाँ पे पहला पोजीशन 2 है और दूसरा 33 है, तो वहां तक जाएगा। विच इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, हैंस इट विल प्रिंट द रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। पाइथन एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट विदाउट एरर्स। तो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो भी पाइथन इसको एक्सेस करेगा और आपको प्रिंट करके देखिए इसमें प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएगा। देखिए लास्ट नंबर है 55, तो ये पूरा उसने प्रिंट करके हमें दे दिया। तो इसी प्रकार से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर और कुछ एग्जांपल दिए हैं, 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया और 2 का ऑल्टरनेटिव ले लिया है। तो आप इसको रन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग जो है मैंने यूज किया है स्लाइसिंग, ये भी आप रन करके देखिए अपने सिस्टम में। कुछ अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी सिंपल है। आप डायरेक्टली इफ कंडीशन में इसे मोस्टली यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वो परसेंटेज आया कि नहीं आया। मानो कि आपके पास लिस्ट है स्टूडेंट के मार्क्स का और किसी के 80% पे आपको कुछ देना है रिजल्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 88 इन द लिस्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ से आउटपुट हमें दिखाएगा ट्रू। दिस कोड रिटर्न्स ट्रू एज 44 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। यहाँ पे 44 है तो हमें ट्रू बताएगा, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। वैसे ही नॉट इन ऑपरेटर है, 44 नॉट इन एल, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स। कॉन्काटिनेशन यहाँ पे है L1 इक्वल टू 456, L2 इक्वल टू 789, L3 इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये दोनों को जोड़ करके हमें दिखाएगा। तो जोड़ना मतलब ये है कि एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे ईच वैल्यू का एडिशन नहीं करेगा, लेकिन दोनों वैल्यू को ज्वाइन करता है। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में ये देखिए 4 5 6 7 8 9। तो ये कंफ्यूजन ना रहे आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या तो फिर ये समझने लिए भी आपको काम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये ज्वाइन करेगा 4 5 6 और 7 8 9। रेप्लीकेशन उससे सेम है, तो यही चीज को रिपीट करेगा जितने बार आप नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 ले लिया है तो ये 4 इस तरह से रिटर्न करेगा, 4 टाइम्स सेम एलिमेंट्स को रिपीट करता रहेगा। उसके बाद है कंपेयरिंग लिस्ट। तो कंपेयरिंग लिस्ट भी मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे कंपेयर करता है, पहली वैल्यू को और इस वैल्यू को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ऐसे कंपेयर करेगा। और जो भी उसको आउटपुट सुटेबल लगेगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। प्रिंट L1 इज ग्रेटर देन L2, L2 इज ग्रेटर देन L1। तो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि L2 यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज है 7 8 9, यहाँ 4 5 6 है। देखिए इसे एक बार यहाँ पे प्रिंट करके मैं दिखा देता हूं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये है और L, इस L की जरूरत नहीं है अभी। ये देखिए L2 इज ग्रेटर देन L1। तो इसी प्रकार से, क्योंकि इसकी वैल्यूज बड़ी है, तो इसी प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट आज का टॉपिक जो है वो है मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट। तो ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा कॉपी, L1 डॉट कॉपी। तो कॉपी करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रिंट करेंगे, डायरेक्टली आप यूज कर लीजिए L1, जो भी वैल्यूज आपको डालनी है डाल दीजिए, फिर L1 डॉट कॉपी और इसे यहाँ पे इसमें स्टोर कर दिया। अगर ये नहीं करना है तो हम डायरेक्ट भी इसे प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट L1 डॉट कॉपी। तो यहाँ पे L1 डॉट कॉपी इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिया उसने और हमें प्रिंट करके दे दिया 1 2 3। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट भी अगर इसे कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल लेकर के दूसरा एक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम लिख देंगे L1। तो ये भी एक कॉपी करने का मेथड है, आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट L2, ये सिर्फ हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू और असाइन वैल्यू करके हमने प्रिंट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। तो इसी प्रकार से भी आप ट्रू कॉपी बना सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे लिस्ट के फंक्शंस, और उस फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक और थोड़ा सा अनाउंसमेंट है,
मैंने FAQs वाली सीरीज चालू करने के लिए सोचा है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए आपके जो क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।